If you switch on your camera, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉपर्ली बोला। नेक्स्ट स्टूडेंट, नाउ आई वांट, जिसका भी मैं नाम लूंगा आपको मुझे एक्सप्लेन करना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स, दोनों टाइप्स के फंक्शंस जो मैंने आपसे सिखाया, एंड देन आप मुझे बताओगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। सरा से स्टार्ट करते हैं। ये सरा, फर्स्ट एक्सप्लेन मी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड उनके फंक्शंस, देन कम टू गोल्गी कॉम्प्लेक्स। There are two types of endoplasmic reticulum: rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum do not have anything on their surface, and hence they are known as smooth endoplasmic reticulum. Their function is to produce steroid hormones and to produce steroid hormones, detoxification, and lipids. Lipids, yeah, lipids. They synthesize lipids. And rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum have ribosomes present on their surface, and hence they appears to be rough. They helps in protein synthesis. Very good. Therefore, protein synthesis हो गया। So अब ये प्रोटीन को कनेक्ट करते हैं और लेकर जाते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स की तरफ। ठीक है सारा, चल कंटिन्यू। Okay, sir. So sorry, what do I have to explain now? क्या क्या? What do I have to explain? You have to take sorry, it further. Like for example, you explained protein तो बन गया ना, तो अपन कहाँ पहुँचे अब तक? जहाँ पहुँचे हमने प्रोटीन तक एक्सटेंशन दे दिया। So अब तुझे बोलना है ये जो प्रोटीन बना ये कौन से फॉर्म में गोल्गी कॉम्प्लेक्स तक जाएगा? They are now transport vesicles. Very good, very good. They enter from transport vesicles enter Golgi complex. Golgi complex has flattened disc-like shape structure. Sara, ऐसे बोलने का. Okay, sir. These simple proteins are carried in the form of transport vesicles towards the cis phase of Golgi complex. Okay, these proteins, right? Simple proteins. Yes. These simple proteins are carried to transport vesicles in the form of in the form of transport vesicles. In the form of towards cis phase. In the form of transport vesicle towards cis phase. And cis phase receives proteins. It is also known as receiving phase or forming phase. Very good. Then it has flattened disc-like structure. Golgi is made up of flattened disc-like structure known as cisternae, which has luminous. Very good. Cisternus, which has lumens. Lumen, correct. Right. Correct. Then lumens. Then the proteins are maybe complexified, and they exit through. They secrete vessels. They exit in the form of trans phase. They exit in the form of trans phase or maturing phase. They exit through trans phase in the form of secretory vesicles. Secrete vesicles. तुम ये पढ़ाई कर रहे हैं। ये कॉकरोच है। हाँ भूत। ये कॉकरोच नहीं है, ये भूत है। ओके चलो आगे बढ़े स्टूडेंट्स। आफ्टर सरा let us go to next person जो रिपीट करेगा। चलो raise your hand. I want you people to raise your hand. Voluntarily you should raise your hand and you should go ahead with the explanation. जितना आप एक्सप्लेन करो यहाँ पे लेक्चर में उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा स्टूडेंट्स। आफ्टर लेक्चर सबिका इज रेडी, बट सबिका एवरी टाइम सबिका ही रेडी रहती है और कोई रेडी नहीं है। जल्दी नर्मदा इज ऑल्सो रेडी। शाबाश नर्मदा। चल नर्मदा से स्टार्ट करते हैं। आई कम बैक टू सबिका ऑल्सो।
खुशी इज ऑल्सो, अभी मैं खुशी का भी हाथ देख रहा हूँ, खुशी केलिस्कर का भी हाथ देख रहा है, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, आई कैन सी। ठीक है, चल चल नर्मदा स्टार्ट। Endoplasmic reticulum is two types: rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum has ribosomes on his body, hence it is called rough endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum does not has anything on it, hence it is called smooth endoplasmic reticulum. The function of smooth endoplasmic reticulum is in producing detoxification, in producing lipids, and rough endoplasmic reticulum helps in protein synthesis. The in protein synthesis, the simple proteins, in the form of the simple proteins from the Are from the simple proteins are transported, they are transported towards Golgi complex in the form of transport vesicle. the simple protein from the simple proteins in the form of the simple proteins are entered in the Golgi complex in the form of incoming transport vesicles Very through the good. cis phase. The Golgi complex is made up of cisternine containing lumen, Shabash. and the protein is then complexicated and then comes out in the form of secretory vesicle through transphase or mature phase. Well done, well Or done. mature Shabash phase. Narmada. Well done, Narmada. Very well done. Next will be Payal Sawant. Payal Sawant, चालू हो जाओ. माझं लेक्चर चालू होतं. एक चीज चालू हो जाओ. बोल. Endoplasmic reticulum. There are two types of endoplasmic reticulum: smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum synthesizes steroid hormones and lipids, and it does the work of detoxification of harmful substances. Rough शाबाश. endoplasmic reticulum Perfect synthesis words ना, protein. perfect words. एकदम simple words use कर रही है और proper order में जा रही है. सबके सब ध्यान से सुनो. आपका revision proper होगा. The simple proteins are carried towards the Golgi complex in the form of transport vesicles. Incoming transport vesicles are received by cis phase or forming phase. The cavity present inside the Golgi complex is called as lumen. The border of lumen is known as cisternae. There are many cisternae present in Golgi. Sister बोलती ना, Cisternae. sisters, brother and sister, वो वाला. Cisternae. There are many cisternae present in the Golgi complex, which consist lumen. The place from where transport vesicles secrete is known as transphase or maturing phase. The vesicles coming out from the maturing phase or transphase are called as secretory vesicles. Very good. That's it. Payal. उतना ही. Well done. चलो साबिका के साथ जाते हैं अभी. साबिका, start. There are two types of endoplasmic reticulum, smooth and rough. The smooth function are detoxification of harmful substances, lipid synthesis, and production of steroid hormones. And the functions of rough endoplasmic reticulum is protein synthesis. Simple proteins from the rough endoplasmic reticulums in the form of incoming transport vesicles are received by cis phase, also known as the forming phase. Golgi complex are made of flattened disc-shaped structures, cisternae having cavity lumen, which absorbs the protein vesicles. Complex protein leave Golgi complex as secretory vesicles through the transphase or maturing phase. So you're muted. Also while speaking, तो जब लोग बात कर रहे थे तो I'm not sure कि आप recording के वक्त आओगे क्या.
शुरू किया तो मुझे वो याद आया कि मैंने उसको पिन किया था, तो hopefully as she is speaking she'll appear in recording notes. Okay. Anybody else would like to repeat? किसी और को रिपीट करना है और थोड़ा go ahead with the next sentence. Next sentence पे जाते हैं. ठीक है, सबसे सब कैमरा ऑन कर लो, पहले कैमरा ऑन कर लो. All of you switch on your camera, switch on your camera, switch on your camera. Switch on your camera. Just a second. Yes, चलो आगे चलते हैं. सो आगे अब मुझे क्या पढ़ाई करनी है? मुझे ये पढ़ाई करनी है कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बाद जो निकलेगा, रिलीज होगा, ये देखो, ये मैं यहाँ पे स्कीमेटिकली आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं. इफ दिस इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये देखो, इफ दिस इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने क्या रिलीज किया? गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने रिलीज किया कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, करेक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स. तो इन प्रोटीन्स का कितना, क्या क्या हो सकता है इस प्रोटीन्स का? ऐसे आप लॉजिकली सोचो, अपन कुछ पढ़ाई, बड़ा सा पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में सोचते हैं. अब एक्सप्लेनेशन भी ऐसे करने का कि द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स और द secretory vesicles which come out of Golgi complex, what all things may happen with these proteins which are coming out of Golgi complex? 3 chances, 3 ways, 3 possibilities are there. 3 things may happen with these proteins which are coming out of Golgi complex. Okay, ये सिंपल सा लाइन बोलने का. कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स जो Golgi complex से बाहर आ रहे हैं, उनके साथ 3 चीजें हो सकती हैं. पहली चीज कि they will be secreted out of the cell. ठीक है, secreted out of cell. They will be secreted out of cell. जब उनको सेल के बाहर सीक्रेट कर दिया जाएगा तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? उस प्रोसेस को आप बोलते हो एक्सोसाइटोसिस. क्या बोलते हो? एक्सोसाइटोसिस. जहां पे एक्सो का मतलब होता है बाहर और साइटो का मतलब होता है सेल से बाहर, है ना? तो अपन एक सेल के अंदर है, अपने सेल के अंदर हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने कुछ तो बनाया और वो चीज हम सेल के बाहर भेज रहे हैं. सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? व्हेन वी आर एक्सपोर्टिंग समथिंग आउट ऑफ आवर सेल, जब हम अपने सेल से कुछ चीज हम सेल के बाहर भेज रहे हैं तो उसको अपन बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस. आपके घर में से अगर अभी आफरीन के घर में जाते हैं, आफरीन के घर में आफरीन की मम्मी ने आफरीन का दरवाजा खोल के बाहर भेज दिया, जा तू बाहर जा, तो अंदर नहीं रहेगी, दरवाजा बंद कर दिया, उसका मतलब आफरीन को क्या कर दिया? आफरीन का एक्सोसाइटोसिस हो गया. समझ में आया? फिर 2 घंटे बाद उसकी मम्मी का गुस्सा शांत हुआ, उसकी मम्मी ने दरवाजा खोला, आफरीन बेचारी दरवाजे पे खड़ी है इतनी देर से. तो मम्मी दरवाजा खोला, बोला आफरीन अंदर आ जा, तो आफरीन का क्या हो गया? वापस से एंडोसाइटोसिस हो गया. समझ में आया? एक्सो एंडो, एक्सो एंडो. क्लियर? तो ये क्या हो रहा है? ये एक्सोसाइटोसिस. सो जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसका हम 2-3 चीजें कर सकते हैं. पहला उसका काम क्या हो सकता है? उसको अपन एक्सोसाइटोसिस कर देंगे. दूसरा उसका काम क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? इट कैन बी स्टोर. अपन उसको स्टोर कर सकते हैं. कहाँ पे स्टोर करोगे? तो अपना कबर्ड याद आ रहा है आपको? वैक्यूल्स में उसको स्टोर कर सकते हैं. वैक्यूल्स में स्टोर हो जाएगा फॉर फ्यूचर पर्पस. वैक्यूल्स में स्टोर हो जाएगा फॉर फ्यूचर पर्पस. थर्ड काम क्या होता है? थर्ड जॉब क्या है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का? गोल्गी कॉम्प्लेक्स कैन ऑल्सो पैक दीज प्रोटीन्स. वो जो प्रोटीन्स उसने बनाया है गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने, उसको पैक करके एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लाइसोसोम. क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स? लाइसोसोम. ये चेक करो. सो गोल्गी कॉम्प्लेक्स कैन ऑल्सो रिलीज these proteins in the form of lysosome. लाइसोसोम मतलब क्या? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल का पार्ट है, जैसे राइबोसोम आपके सेल का पार्ट है, जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स आपके सेल का पार्ट है, उसी तरह से सेल का एक और पार्ट होता है लाइसोसोम, जिसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही बनाता है. लाइसोसोम एक ऐसा सेल का पार्ट है जिसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही बनाता है.
और लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो लाइसोसोम का काम क्या है, तोड़ना, सबको मारना, तोड़ना। इट विल ब्रेक कॉम्प्लेक्स थिंग्स इनटू द सिंपल वंस। तो सारी चीजों को तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए ना, उन सारे एंजाइम्स को अगर एक डब्बे में डाल दिया जाए तो उस डब्बे का नाम क्या है, लाइसोसोम। समझ में आया स्टूडेंट्स? सारे एंजाइम्स, सारे बायोमोलिक्यूल्स को, जो भी केमिकल्स आपके सेल में जाते हैं, उन केमिकल्स को तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए, जितने भी एंजाइम्स चाहिए, अगर उन सारे एंजाइम्स को मैं एक साथ एक डब्बे में डाल दूं तो उस डब्बे का नाम है लाइसोसोम। सो वो डब्बा कौन मैन्युफैक्चर करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही करता है। समझ में आया? तो तीनों काम मैं एक साथ वापस एक्सप्लेन करता हूँ। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मेन काम क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाना। ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, बाहर का उससे कोई पड़ोसी वाला सेल बोलता है मुझे भेज देना प्लीज गोल्गी कॉम्प्लेक्स, मुझे भी प्रोटीन चाहिए, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने प्रोटीन का सिक्रीटरी वेसिकल्स के फॉर्म में एक्सोसाइटोसिस करवा दिया। समझा? ये पहला काम उसने किया, एक्सपोर्ट कर दिया, अपने फ्रेंड के लिए भेज दिया। दूसरा, किसी को नहीं चाहिए तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से आप लोग एक काम करते हैं, हम लोग इस जो प्रोटीन मैंने बनाया है उसको हम अपने सेल में स्टोर कर लेते हैं, स्टोर रूम में, कबर्ड में स्टोर कर लेते हैं। उस कबर्ड का नाम क्या है, वैक्यूम। और तीसरा काम उसने क्या किया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूसेस a cell component or a cell organelle known as lysosome, and lysosome contains hydrolytic enzymes. Hydrolytic मतलब क्या, तोड़ने वाला enzymes। समझ में आ गया? रिपीट करता हूँ, complex proteins produced by Golgi complex can have 3 fate. उसके 3 काम हो सकते हैं। First, these complex proteins will be released outside the cells, so that will be known as exocytosis. Second, the complex proteins which are formed can be stored in the form of vacuoles, inside the vacuoles. And third, the complex proteins which are formed are packaged in the form of lysosomes, and they stay in the body. Clear है? In the cell, in the cell. Clear students? समझ में आ गया? समझ में आ गया तीनों काम? Yes, sir. ओके, शाबाश। चलो, आपने उसे स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई विल मूव अहेड। अब मैं आपको क्या दिखाऊंगा स्टूडेंट्स, ये देखो, अब एक छोटा सा इमेज के फॉर्म में आप चेक करो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये देखो, ये मैंने क्या दिखाया है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट वेसिकल रिलीज हो रहे हैं, उनको रिसीव किया गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने, और फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स जब निकालता है सिक्रीटरी वेसिकल तो वो भी मुझे दिखाई देगा। चेक करो, आराम से देखो, ये देखो, लेजर यूज करूं मैं समझाने के लिए। ये देखो, ये जो लेजर जहाँ पे मेरा दिख रहा है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से अभी देखो ट्रांसपोर्ट वेसिकल निकलेगा, देखो यहाँ से भी ट्रांसपोर्ट वेसिकल निकलेगा, ये देखो निकला, देखा आपने, दिस इज ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ये कहाँ जा रहा है, देखो सिस फेस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स पे जा रहा है, ये रहा सिस फेस, उसके साथ मर्ज हो जाए, मर्ज हो गया उसके साथ। देखो अब ये रहा प्रोटीन, प्रोटीन अंदर बनेगा 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 बनेगा, बन के रेडी हो गया प्रोटीन। अब देखो क्या आएगा यहाँ से, ये देखो आ गया, ये है अपना सिक्रीटरी वेसिकल्स, और ये सेल के बाहर गया तो उसको बोलते हैं अपन एक्सोसाइटोसिस। तो सिक्रीटरी वेसिकल जो बाहर आया, अगर वही सेल के बाहर चला गया, जो अभी अपन ने पहला काम बताया ना एक्सोसाइटोसिस, सिक्रीटरी वेसिकल्स जो निकलेंगे उनका बहुत सारा काम हो सकता है। तो वन ऑफ द जॉब इज टू गो आउट ऑफ द सेल, that is exocytosis. This is plasma memory. ये प्लाज्मा मेमोरी येलो कलर। यहाँ से प्रोसेस समझ में आया? टेल मी, प्रोसेस समझ में आया स्टूडेंट्स? प्रोसेस Yes, समझ में आ गया? Yes, वेरी sir. गुड, Yes. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलो आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, लेट अस गो अहेड। सो नेक्स्ट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है? तो लाइसोसोम की अभी अपन पढ़ाई करने जा रहे हैं। लाइसोसोम मतलब, ये देखो, जब किसी भी पर्सन ने अगर आपको अगली बार पूछा व्हाट इज लाइसोसोम, तो उस वर्ड को ब्रेक करो। सो लाइस का मतलब क्या होता है, लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक, ठीक है, लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक। ओके, किसी का ऑडियो ऑन है, प्लीज म्यूट योर ऑडियो, ऑडियो चेक कर लो किसका ऑन है, प्लीज म्यूट योर ऑडियो। ओके, सो लाइसोसोम मतलब क्या,
ऐसा सेल ऑर्गेनेल जिसके अंदर ढेर सारे एंजाइम्स हैं। और लाइसोसोम को कौन बनाता है? अभी अभी मैंने आपको बताया, लाइसोसोम को कौन बनाता है? गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी apparatus। वेरी गुड। गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी apparatus, तीनों नाम है उसके। ठीक है। सो ये देखो, मुझे लाइसोसोम दिख रहा है। लाइसोसोम के अंदर कौन से एंजाइम से चेक करो स्टूडेंट, जूम करता हूँ फिर आपको वर्ड दिखेगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, कैन यू सी ओवर हियर? लाइसोसोम्स कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगेन लाइटिक मतलब क्या? लाइटिक मतलब क्या? तोड़ने वाला, ब्रेक करने वाला। ठीक है। हाइड्रोलाइटिक मतलब क्या? वाटर के प्रेजेंस में तोड़ेगा। हाइड्रोलाइसिस सुना है कभी आपने? हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, उसका भी मतलब सेम होता है। ओके, चलो अब इसके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इससे आगे देखते हैं। नेक्स्ट विल गो टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमने ऑलरेडी कवर किया है, माइटोकॉन्ड्रिया हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, इफ यू रिमेंबर। ठीक है। सो अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे मेरे रिकॉर्डिंग्स तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर हो जाएगा। ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है, याद रहा हमने पूरा स्ट्रक्चर कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया का। शुड आई रिपीट माइटोकॉन्ड्रिया? शुड आई रिपीट दिस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नो प्रॉब्लम। माइटोकॉन्ड्रिया को रिपीट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया के आगे उसका फंक्शन एंड देन ये वाले सेक्शन पे अपना जाएंगे। इसलिए मैं आपको क्लोरोप्लास्ट भी डिटेलिंग अभी कर दूंगा, क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, ये वाले डिटेलिंग अभी पढ़ा दूंगा। ठीक है। सो लेट मी गो टू माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट। Okay, I'll come to mitochondria next, students. So what is mitochondria? Actually, I should say what are mitochondria, because singular is mitochondria. Very good, correct है। So हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रियम, दिस इज सिंगुलर फॉर्म। इसका प्लूरल नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया, ये है प्लूरल नाम। ना माइटोकॉन्ड्रिया कैसे दिखाई देगा? सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। कैसे दिखाई देगा स्टूडेंट्स? आउटर लेयर एक होता है, आउटर लेयर इज कंटिन्यूअस, एंड जो इनर लेयर इसका होता है, इनर लेयर हैज फोल्डिंग्स। चेक करो स्टूडेंट्स, इनर लेयर पे क्या होते हैं? फोल्डिंग्स होते हैं। दिखाई दिया? इनर लेयर हैज फोल्डिंग्स। आउटर लेयर बोलने का कंटिन्यूअस, इनर लेयर बोलने का फोल्डिंग्स। आउटर लेयर इज कंटिन्यूअस, inner layer has foldings. So let me label over here. This is outer layer, and which is continuous, bracket में डाल देता हूँ। ठीक है। Then we have inner layer, and inner layer has foldings. Yes, students. Then ये जो फोल्डिंग्स होते हैं, दिख रहा है आपको? ये फोल्डिंग एक हो गया, ये एक फोल्डिंग हो गया, ये दूसरा फोल्डिंग हो गया। इन फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे। वेरी गुड, वेरी गुड। इन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं इन फोल्डिंग्स को? अपन क्रिस्टे बोलते हैं। शाबाश। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। आगे स्टूडेंट देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, ये जो स्पेस है, देखो ये स्पेस जो दिख रहा है ना आपको, ये स्पेस, दिस स्पेस इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। वेरी गुड, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, ठीक है। ऑडियो म्यूट कर लो, ऑडियो म्यूट करके आंसर दो प्लीज, ऑडियो म्यूट करके आंसर दो। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। Okay, intermembranous space. Once again, camera have gone off. सारे cameras have gone off. विफाक, क्या हो गया तुझे आज? कैमरा बराबर ऑफ कर रहा है, नींद आ रही है क्या? विफाक, खुशी के उस पर
है ना। श्रेया पाठक कंसिस्टेंटली कैमरा ऑन ऑफ चालू है। सदीच्छा मसूरकर कैमरा ऑन ऑफ चालू है। विशाल गुप्ता कैमरा ऑन ऑफ। बाकी लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, बट ये जो मैंने नाम लिए हैं ये लोग कैमरा लगातार स्विच ऑफ खेल रहे हैं। प्लीज फोकस ओवर हियर। सो दिस स्पेस इज नोन एज स्टूडेंट्स इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। क्या नाम है स्पेस का? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। नेक्स्ट पे आता हूँ स्टूडेंट्स में, ये जो जोन है इनर रीजन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये पूरा रीजन, पूरा रीजन, दिस एंटायर रीजन इनसाइड इनर मेम्ब्रेन, this entire region inside inner membrane is known as, well done Vishal, it is known as matrix. Matrix. क्या नाम है इसका? Matrix. Okay students, if you want you can take a screenshot. So mitochondria आप ऐसे स्टार्ट करोगे, mitochondria is a, just a second, okay. So this is how I will explain mitochondria. Okay students, आराम से सुनो इसको। Mitochondria प्लूरल टर्म में यूज करता हूँ। Mitochondria are double layer or double membranous structures. Double membranous structures. Outer membrane is continuous while inner membrane has foldings, and these foldings are known as cristae. The space between two membranes is known as intermembranous space. Next, the region inside the inner membrane is known as matrix. Region inside the inner membrane is known as matrix. Okay. ठीक है students. Next, आगे बढ़ जाऊं, इससे आगे बढ़ूं। क्रिस्टे हैज, ये देखो चेक करो स्टूडेंट्स। अब मैं इसको गायब कर देता हूँ, आपको ये समझ में आ गया तो मैं ये पूरा सेक्शन निकाल देता हूँ। एंड नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। क्रिस्टे के ऊपर क्या होता है उसकी मैं डिटेलिंग अब करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। क्रिस्टे हैज F1 पार्टिकल्स, ये देखो क्रिस्टे हैज F1 पार्टिकल्स। ये जो मैंने बनाया है इसको मैं बोलता हूँ F1 पार्टिकल्स। ठीक है, तो इनका लेबलिंग कर देते हैं, आ जाओ। इसकी लेबलिंग क्या करूंगा मैं? F1 पार्टिकल्स। क्रिस्टे हैज F1 पार्टिकल्स। क्रिस्टे हैज F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल्स के टोटल 3 नाम है। F1 पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स और ऑक्सीजोन्स। F1 पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स और ऑक्सीजोन्स। ठीक है, फिर आप ये डायग्राम बना लो। डायग्राम आप बना लोगे, फिर मैं इसको डिलीट करके फिर आपको बाकी तीनों नाम लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, चलो ऑल ऑफ यू क्विकली ड्रॉ दिस डायग्राम। माइटोकॉन्ड्रियोन जिसने पहले ड्रॉ किया था वो भी ड्रॉ करेगा वापस से। चलो जल्दी जल्दी। माइटोकॉन्ड्रियम, ठीक है, अगर आपने पहले ड्रॉ किया है तो यू कैन स्किप दिस टाइम, यू कैन रेस्ट टिल देन। ठीक है रिफाक तो ये समझ में आ रहा है? रिफाक को आज कंटाला। चलो माइटोकॉन्ड्रियम स्टूडेंट्स, क्विकली गिव यू 2 minutes, क्विकली फिनिश दिस, लेट अस प्रोसीड इनटू द नेक्स्ट ऑर्गेनेल। आज हमको फटाफट से प्लास्टिक में एंट्री मारनी है, ये सबके लिए नया है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट।
डन, should we move ahead? हो गया ड्राइंग, माइटोकॉन्ड्रियन बना लिया सबने, यस ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। So now I delete this. Wait. Before deleting this, थोड़ा सा एक आपको नॉलेज दे देता हूँ जो इस चैप्टर में भी है और जो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं सारे पार्ट्स हटा देता हूँ जो काम के नहीं है। All these sections will go. Now, if I consider my screen, जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है पूरा वाइट, पूरा जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, if that screen is a cell, ठीक है, this entire screen is a cell students, तो मैं ये देखो ऐसे बनाता हूँ, ये जो मैं बाउंड्री बना रहा हूँ दिख रहा है आपको, ये पूरा बाउंड्री जो दिख रही है आपको, दिस इज सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये पूरा बाउंड्री जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देन टेल मी ये कौन सा रीजन हुआ, इसको अपन क्या नाम है? साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेल डन। साइटोप्लाज्म और साइटोसोल, करेक्ट है, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल। साइटोप्लाज्म में कौन सा पाथवे होता है, याद आ रहा है 10th का किस्सा लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1, कौन सा पाथवे होता है साइटोप्लाज्म में? ऑप्शन आर 3, आपके पास 3 ऑप्शन है, आप करेक्ट आंसर मुझे बताओ। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी। ETC, that is wrong answer. Krebs cycle. Shabash, well done, that is also wrong answer. ठीक है, so right answer is glycolysis. So this is the pathway which happens in the cytoplasm. Okay students, glycolysis होता है cytoplasm में। Next आगे बढ़ जाते हैं। दिस शोज के अपन ने 10th में कितने ध्यान से पढ़ाई की थी। मैट्रिक्स में कौन सा पाथवे होता है? सरा लाफिंग, सरा हंस रही है, बाकी सब मन ही मन हंस रहे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं, सबको पता चल रहा है कि हो यहाँ पे तो सारी तस्वीर क्लियर हो जा रही है, बिन बताए सारी दास्तान अपने आप को बयां कर दे रही है। इसका देखो ये आपके साथ आगे भी होगा, नॉट ओनली इन केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, in every subject teachers will come to know if you have studied in your 10th standard or not. अगर आपने नहीं पढ़ाई की ना कोई कंसेप्ट तो साफ हो जाएगा, बिकॉज एक क्वेश्चन किया और स्टम्प उड़ गया, मतलब समझ गया कि हाँ ये वाला तो नहीं पढ़ा। ठीक है, मैट्रिक्स में कौन सा पाथवे होता है स्टूडेंट्स? क्रेब्स साइकिल। ठीक है, मैट्रिक्स में होता है क्रेब्स साइकिल। सो क्रेब्स साइकिल सारे एंजाइम्स, क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम्स एंड रॉ मटेरियल्स मुझे कहाँ मिलेंगे? मैट्रिक्स में मिलेंगे। नेक्स्ट, ईटीसी पाथवे कहाँ होता है? ईटीसी पाथवे होता है इनर मेम्ब्रेन पे। ठीक है, सो इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है ईटीसी पाथवे। ये ईटीसी पाथवे, जस्ट अ सेकंड, राइट, ईटीसी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये तीनों पाथवे आपको अभी आने वाला है, आप इसकी पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, इफ यू रिमेम्बर, मैंने कल रात को आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज सेंड किया, बायोलॉजी एक्सप्रेस। किसने देखा वो मैसेज के वीडियोस देखे? किसी ने नहीं देखा? मैसेज भेजा ये तो पता है क्या? यस किसी ने देखा? रेज योर हैंड। किसी ने देखा है? कैमरा में हाथ ऊपर करो। पायल ने देखा है, ओके, वेरी गुड। नोबडी एल्स? Okay, Riya has also seen. Well done, Riya. So students, अगर वो आप वीडियो देखोगे तो आपको अभी आपके 11th स्टैंडर्ड में ग्लाइकोलिसिस पाथवे पूरा का पूरा आने वाला है। ग्लाइकोलिसिस पाथवे के 10 स्टेप्स हैं, 10 स्टेप्स। रॉ मटेरियल्स, एवरी स्टेप पे रॉ मटेरियल, स्टेप का नाम, एंजाइम का नाम। ठीक है, एवरी स्टेप। तो वो पूरा का पूरा पाथवे जो याद रखने में मुश्किल होता है, नीट बैच 1, जो आप बैच 2 हो ना, तो जो नीट बैच 1 के बच्चे हैं उन्होंने वो पूरा पाथवे 36 सेकेंड्स में बोला। 36 सेकेंड्स। एक स्टूडेंट ने 36 सेकेंड में बोला, एक ने 44 सेकेंड्स में बोला है,
एक बच्ची ने आई थिंक 1 मिनट 7 सेकेंड्स में बोला है। तो आज लेक्चर की बात है, वो वीडियोस देखो वापस। ज्योतिका ने 44 सेकंड्स में बोला, एक ने 43 में बोला, एक ने 36 सेकंड्स में बोला। ऐसा आप स्पीड सुनो। तो अपन भी बोलने वाले, टेंशन मत लो, आप सबको भी मैं सिखाऊंगा, तो आप भी बोलोगे और लोगों को डराओगे। ठीक है, दैट इज हाउ कैश 25 वाले बाकी लोगों को डराते कैसे हैं, बाकी बाहर के बच्चे जो कैश 25 में नहीं है, वो आपको सुन के कैसे डरेंगे जब आप उनके सामने पाथवे बोलोगे दा 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 दा, तो उसमें बाप रे क्या बोल रहा है। जहाँ लोगों को ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे स्टेप्स भूल जाते हैं, स्टेप का नाम भूल जाते हैं, एंजाइम भूल जाते हैं, उनको तकलीफ होती है लर्न करने में, आप उसको हार्डली 1 मिनट लोगे, 1 मिनट एंड जॉब डन। ठीक है, दैट इज माय एश्योरिटी, बट दैट विल हैपन इफ यू आर विथ मी। जो मैं काम बोल रहा हूँ आप करोगे तब, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसे शर्माओगे जैसे आपका ग्रुप शर्माता है, तो आपके ग्रुपों में क्वेश्चन पूछता हूँ तो हार्डली 3-4 हाथ ऊपर आते हैं। रिफाक को मैं गिन लूँ, साबिका को गिन लूँ, पायल, सावन, सरा, ये कुछ ऐसे नाम है, मृण्मयी, सॉरी मृण्मयी का नाम मैंने मिस कर दिया, मृण्मयी है, ऐसे कुछ बच्चे हैं जो ये क्रिश पटेल, सदीच्छा है दोस्त, सदीच्छा भी सामने से वॉलंटरली कभी शी वॉलंटियर्स की यस आई वुड लाइक टू आंसर। सो आप लोगों को ये इम्प्रूवमेंट जरूर करनी पड़ेगी कि आप लोगों को सामने से बोलना पड़ेगा कि मुझे आंसर देना है, मेरे पास ऑप्शंस होने चाहिए यहाँ पे कि 8 से 10 जन ने हाथ ऊपर किया। ये आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज वन थिंग व्हिच आई वांट विद दिस बैच। इफ दैट हैपेंस देन यू आर ऑन राइट ट्रैक। ओके, आगे चलते हैं। F1 पार्टिकल कैसे दिखाई देता है ये चेक कर लो फटाफट से। F1 पार्टिकल जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था वो ऐसा कुछ दिखाई देता है, हेड, स्टॉक, बेस। ये मैंने F1 पार्टिकल को जूम कर दिया, मैं कर दूंगा यहाँ से। I delete everything